The intention of putting out these videos on YouTube is to give you guys a glimpse into the kind of discussions we have in the Abstract Room. If discussing about films, books, poetry, etc. is something that you love, then do consider becoming an Abstract member. Also, please subscribe to our YouTube channel if you haven't already. We are trying to put out more content regularly, and having an increase in subscribers will definitely help us put out more. The film discussion on Jallikattu happened over a year ago, and I personally remember having a lot of fun because it was one of the most constructive conversations we have ever had in Abstract. We talked about the constant tussle between humans and nature, and the interesting connection between the book Sapiens by Yuval Noah Harari and this film. So I really hope you enjoy this conversation. And anyone who watched the film like recently, abhi 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, or like how do they want to share their experience talking about कैसा रहा देख? In the beginning I was like हाँ, तो मैं ना मलयालम मूवीज मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है, जॉनर भी बहुत ही नया था, तो मैं इन द बिगनिंग आई वाज लाइक कि क्या देख रही हूँ मैं, ठीक है। और मैंने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया। मैं जब खाना खा रही थी तब मैं थोड़ी फ्री थी, तो मैंने सोचा मैं खाना खाते खाते थी, सो द बिगनिंग वाज नॉट वेरी गुड फॉर मी, बट यू नो लाइक इट गॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी like after a certain point when the buffalo ran away, and overall I found it very exciting, and like I would like to watch more such movies. And like it was very weird for me, honestly it was very weird for me, but yeah, I enjoyed watching it. Yeah, so I watched it yesterday night, and I hadn't watched any trailer or anything. I heard about the movie like back when it was released, and I heard it was critically acclaimed. And so in my mind I thought it was like something about the fight or the game Jallikattu, but to my surprise it was nothing like that. And if anyone here from Maharashtra, there is this movie called Varu in Marathi. It was released back in 2008. So उसमें क्या है कि सेम थीम है कि एक बुल होता है जो इट वाज लाइक एक गांव में बुल होता है और एक फॉरेस्ट ऑफिसर आके उसको पकड़ना होता है. So it was same theme. So this movie reminded me of that movie. But उसका थीम बहुत अलग है. It was like simple, sweet and comedy type. This movie is like comedy. But this was like kind of like horror movie, I would say. Kind of. वो मतलब बड़ू मूवी का ये इविल फॉर्म था. तो बाकी तो लाइक जैसे वंशिका ने अभी कहा कि थोड़ा सा वियर्ड. एक तो स्टार्टिंग में लाइक इट वाज लाइक क्या हो रहा है, अच्छा भी लग रहा था कि ये कुछ तो नया है, इंटरेस्टिंग है. और स्टार्टिंग तो मुझको बेस्ट लगा कि एक एक लोग दिखा रहे, एक एक सीन दिखा रहे, म्यूजिक तो थोड़ा सा अजीब बट अच्छा वाला अजीब था. सो आई लाइक्ड इट. That's interesting. Anyone else जिसने I think पहले कभी देखी थी and they rewatched it or something, और या फिर जिसको याद हो उन्होंने जब पहली बार देखी थी, how the feel of it was? 2019 अक्टूबर थिएटर में देखी थी मूवी जल्लीकट्टू. I mean that was really, I mean I was so lucky that I had this roommate. Did you have any context on what it was about पहले से? नहीं. He just देख see my roommate, I मैंने पहले बोला ना कि my roommate was Malayali when I was in Chennai. So वो बोलता था कि ये मूवी जाना है, चलोगे? हाँ चलूंगा, बस डन. वो बोला तो मुझे भरोसा उस पे कि मूवी अच्छी होगी. जब वो बोल रहा है उसको थोड़ा सा पता था, मैंने कुछ नहीं देखा था. I just went with him. एंड जब मूवी शुरू ही हुई, मतलब एंडिंग तक तो माइंड ब्लोन, माइंड फक वो अलग हो चुका था, बट मूवी जब शुरू हुई ना, तो शुरू का सीक्वेंस भी इतना अच्छा है ना, द साउंडस्केप, द सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग. एंड बट मैं उसके पहले एक्चुअली अंगामाली डायरीज देखा था, व्हिच इज एलजेपी's इसके पहले की मूवी. सो मुझे आई न्यू हिज, आई वाज काइंड ऑफ अक्वाइंटेड विद हिज स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज अंगामाली का वो लास्ट 11 मिनट्स कंटिन्यूअस लॉन्ग शॉट वो वेरी फेमस है ना. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ मतलब कुछ होगा, बट डिडंट एक्सपेक्ट कि मूवी इस पॉइंट पे शुरू होगी एंड लाइक इस पॉइंट पे खत्म होगी, एंड ऐसे लाइक पप 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 ब्लास्ट करेंगे. एंड यू कैन अंडरस्टैंड ना, लाइक स्मॉल स्क्रीन पे देखना है, लाइक बिग स्क्रीन पे देखना द एंटायर विजुअल एंड द साउंड, सराउंडिंग साउंड एक्सपीरियंस विद अ मूवी लाइक जल्लीकट्टू. आई मीन आई हैव वो वहां पे वो लोग जब वो कॉमरेड्स वगैरह आते हैं वहां पे, लाइक वो बच्चा हो रहा है, आफ्टर दैट वो सीन हो गया है, बैंक वाला वो ढूसा ढूसी हो गया है, आते हैं वो एक बंदा पीछे से टुई 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 करके आता है, पक से बम छोड़ के चला जाता है, फुट से वो तक जाता है. मतलब मुझे ना, मतलब पूरे द मूवी इज अ वेरी सीरियस मूवी, उसमें ये सीन जो बंदा ला सकता है, इतना लाइट हार्टेड कॉमेडी, मतलब इतना, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्लैपस्टिक कॉमेडी. उसमें इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, वो मोमेंट है.
तो मतलब मूवी ना इस the entire movie gives me a very varied flavor which I can take it from. मतलब it's very dark at points. जिन्होंने मतलब देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो they know it's very dark at points. It speaks about a lot of things with the visuals, with the sounds. On the other hand, it gives you an enjoyable journey also. I think the film, I try to think how should I place it in the larger context, but I just मैं ना उसको थोड़ा सा एक ऑर्वेलियन वाले डिस्टोपिया वाले सेंस में देख रहा था एक बार के लिए, but still there are elements which are so grounded in reality, so it's like a very interesting paradox that the film has. It's a reflection of our apparent reality that exists, but at the same time it is also, you know, a reminder or reiteration or a warning that what is an extreme possibility that is still possible. मतलब ये भी है, ये भी तुम्हारे दिमाग के अंदर एक एलिमेंट है, योर डिजायर योर ग्रीड के अंदर तुम्हारे वो तुम्हारे कौन सा वो होता है दिमाग में, आई फॉरगॉट द पार्ट इन योर ब्रेन, बेसिक इंस्टिंक्ट, that primal instinct, very primarily human instinct is still there and will be there, and it can take over at any point, can take over at any point. Yeah, so वही चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स था, बिकॉज द एंटायर जस्ट शुरू हो रहा है, इट शोज द एवरीडे लाइफ एक तरीके से, and then the way वो tension release increase वो कर करके at such a high note it ends, but still it's a very musical film. It has a musical tonality to itself. Yes, Vishal, please. The very first time I saw the film, when I was searching in my YouTube something, and I saw Anmol Jamwal's the video that this film should go to Oscars. That's when I think I started watching Jallikattu. उस टाइम पे मैंने देखी थी, फिर मैंने कुछ टाइम पे कुछ 1-2 साल पहले देखी, and I guess 1-2 महीने बाद फिर देखी. तो for me it was a stepping stone in order to understand how a film is made, like those technicalities point of view, rather कि जो social and जो अभी तुम और अर्नब बात कर रहे थे वो तो बाद में आया, वो तो जब खत्म हो गई पिक्चर और जब आफ्टरमैथ करी तब जाके वो चीज आई. बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड फिल्म. लाइक जैसे हर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज टेक्निकलिटी, यू नो, जलीकट्टू इज लाइक कि आपको बिना कॉन्टेक्स्ट के जो एक फ्रेम मिलता है, and then you go into deciphering millions and millions of possibility of it happening, you know. तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं. मतलब मैं अगर स्पेसिफिकली जाऊं तो that footprint of that man, and I mean, how many things can you imagine? The coexistence of both the people, of both the entities, that is one basic thing. Or what the whole thing that is happening, एक पैर उसका और एक पैर इसका, that means half उनका भी है और half हमारा भी है. That is, you know, there are so many things, and कहीं भी वो फिल्म में ऐसे दर्शाया नहीं गया है कि हम लोग वैसा, you know, पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं. So जलीकट्टू was that film for me, which tell me कि मतलब यार ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी देखो, though it is difficult, though it is not easy to decipher, but for you, you know, we kind of put it out there and you have to learn from it. तो मेरे लिए वो फिल्म थी जहां से मैंने सीखना शुरू किया था, and that started, you know, my journey of observing films from that end. कि भाई एक फ्रेम के मल्टीपल मतलब क्या हो सकते हैं, वरना तो, you know, it's quite blank. If you're going to see the film without technicality, it's a blank film. It's not going to have a much impact on you apart from the music and the social message. If you don't go into the details how it has been shot, it might go flat if the person is, you know, watching it for the very first time. तो उसका बहुत impact रहा मेरे, मतलब जब मैंने पहली बार देखी तो. About that particular shot that he talked about, वो the footprint of the buffalo and the man वाला, उसका वो मीनिंग तो समझ में आ गया, तो विशाल ने बताया इक्वल राइट है, यू नो, लैंड इक्वल एंड द कोएग्जिस्टेंस, बेसिकली कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो इस पे था. बट स्टिल लाइक एक वो शॉट एंड रिमेंबर दैट सीन वेयर that old guy is talking about पहले ये पूरा जंगल था. Yeah, correct. That's the best scene. But I wanted to give another perspective to it. क्या ये दोनों particular scenes and the post credit scene, or so to say, the film खत्म होने के बाद जो एक और आया था, are these 3 scenes like आपको एक प्लेटर पे दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसान पड़ जाए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिना उसके फिल्म चलती नहीं क्या? मतलब मेरा बोलो, these seem like fillers to me. Correct. I agree to that. और जैसे कि मतलब यू कैन गेस द पोस्टर से भी मतलब तुम पता कर सकते हो कि क्या फिल्म है. पोस्टर भी काफी ज्यादा विजुअली वो है,
बट टू सो सर्टेन एलिमेंट्स जो कि तूने बोला क्या थे वो फुटप्रिंट वाला, और फिर जो दैट गाय एक्सप्लेनिंग कि ये लोग दिख तो रहे हैं इंसान की तरह बट ये बीस्ट है जो घूम रहे हैं, और फिर वो लास्ट वाला सीन और कहते कैसे वो ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे तो बढ़ रही है बट एक तरीके से वो पीछे जा रही है ना कि आगे जा रही है। तो हाँ मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा कहते सिंप्लीफाइड कर किया गया था। बट हाँ जब तुम एक सर्टेन मास को कहते कैटेगरी करते हो, मतलब कहते हैं कैटर करते हो, और तुम जब एक सिंपल बात बताना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना सिंप्लीफाइड वर्जन में तुम अपना स्टोरी टेल कर सकते हो। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे है उस बैकग्राउंड से कि हमें थोड़ी सी सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग है या फिर हमें पता है कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट क्या शो कर रहा है। बट जब तुम एक फिल्म दिखा रहे हो इतने बड़े ऑडियंस के सामने, जिनको जिनको तुम्हें बताना है, मुंह पे बोलना है कि ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारे बारे में, और तुम उसको ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली नहीं कह सकते, तुम्हें इनडायरेक्टली किसी तरीके से कहना पड़ेगा। और वो हमें लग रहा हो डायरेक्ट लग रहा हो, बट ऑडियंस के अगर तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर तुम मासेज को ऐसे डिफाइन करें तो उसके हिसाब से मेरे को सही लगा, मतलब बैलेंस्ड लगा मेरे को, ना ओवरली सिंप्लीफाइड लगा और ना मेरे को बहुत कंडक्टिव लगा। Also adding to his Mahi's note, ये बहुत अच्छी बात है because in a film, अभी तो मैंने बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस लिखे थे जहाँ पे संकल्प यार सेइंग कि वो डायरेक्टली काइंड ऑफ हमें एक प्लेटर पे दे दिया है। अगर आप देखोगे ना द मोमेंट अगर मैं सिर्फ वो वाली बात करूं जो कॉन्वर्सेशन हो रही है जब वो बता रहा है, उससे पहले क्या बात हो रही थी और जस्ट उस डायलॉग के क्या उसके बाद जो बात हुई है ना, इट काइंड ऑफ ब्लर्ड इट। लाइक होता ना कि ऐसा कोई जूम नहीं हुआ, पैन नहीं हुआ। If the audience is attentive ना, they are going to hear what that guy is saying. अगर 2 मिनट का भी अटेंशन गया ना, उसके बाद के जो डायलॉग्स है ना, they are kind of blur, वो एसेंस को हटा देते हैं। तो आई थिंक that's where the director has played quite cleverly कि अगर किसी ने ध्यान से सुना तो ठीक है, वरना ये बातें इतनी फ्लुएंट है, इतनी वॉटरी हैं कि ये एसेंस यूं निकल जाएगा उसका। बिकॉज उसके बाद वो कहता ना, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा, तू पी आराम से। सो that kind of I think dialogues जो बहुत ही easy way में लिखे गए within, मतलब उससे पहले भी और उसके बाद भी, तो वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो डालना भी चाह रहे थे और कहीं ना कहीं उसको ब्लर भी करना चाह रहे थे। ऐसा मुझे मल्टीपल टाइम्स लगा फिल्म में। कल परसों में किसी का वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बोला कि गैंग्स ऑफ वासेपुर या इस तरीके की मूवीज के साथ एक्चुअल वो क्या है, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर कितनी सिंपल फिल्म है, वो रिवेंज का वो है, 3 पीढ़ी में चला आ रहा है, हमने गॉडफादर में भी देखा है, स्कारफेस हुई या फिर गुडफेलास हुई, तो ऐसा क्या था गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो अलग से कुछ बना हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो बेसिक चीज ये थी कि उसके हर कैरेक्टर इतने, मतलब राइटिंग में आप देखो किस तरीके से लिखे गए हैं कि हर कैरेक्टर की अपनी खुद की फिल्म हो सकती है। सेम चीज इसके साथ किया, अब हर कैरेक्टर को आप एक तरीके से देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितने घंटे की मूवी है, 2.25 घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, उसके अंदर आपने इतने सारे कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, याद भी नहीं है एक्चुअली। मैं कास्ट देख रहा था कि मेरे को नाम याद नहीं रहते मूवी के लिए कैरेक्टर्स के, तो मैं कास्ट में कैरेक्टर्स के नाम देख रहा था, कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए। एंटनी कुचप्पा, क्या नाम था उसका, कुचप्पा था क्या था, कुचप्पन, हाँ शायद वो नाम, और शायद उसका जो वो था फादर था, वो जो उसका एंड जिसके अंडर उन्होंने काम करते थे, उसके अलावा ज्यादा किसी के नाम दिए नहीं है। वो सो और सोफी का नाम, बाकी वाइफ ऑफ दिस, $30 ऐसे नाम दे रखे, नाम भी नहीं लिखे उन्होंने। लेकिन स्टिल वो हर एक कैरेक्टर को इस तरीके से कैरेक्टर्स पे काम किया है, प्लॉट पे इस तरीके से काम किया। कैसे काम किया है कि आपने प्लॉट भी इतना बड़ा रखा, आपने कैरेक्टर्स भी इतने सारे रखे, और सब में इतनी डेप्थ है कि आप हर कैरेक्टर के ऊपर पूरी मूवी बना सकते हो। अगर मतलब कि कोई अगर सोचे कि हाँ हर कैरेक्टर अपने आप में पूरा होलसम है, तो वो चीज थी जो इस फिल्म के साथ वो लगी कि इसी वजह, मतलब अगर ये ना हो तो शायद फिल्म फ्लैट जाए। मतलब विजुअल मीडियम और साउंड म्यूजिक तो है, लेकिन अगर ये चीज ना हो तो फिल्म फ्लैट लगेगी। तो ओपनिंग मोन्टाज सीक्वेंस है, इट्स अ मोन्टाज सीक्वेंस एक तरीके से, राइट? उसका रेलेवेंस क्या है, लाइक व्हाट्स द सबटेक्स्ट, उसका वो सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक व्हाट इज इट रियली ट्राइंग टू शो, क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उसमें? व्हाट डू यू थिंक? So in a way, if you understand it, no, so it's just a term that is called that basically that they are showing a monotonous life of the people of that village. Like वो particular, क्योंकि the entire first I guess 10 minutes, if I'm not wrong, 5 to 10 minutes of the whole montage is just about how their daily or usual days are like, because it's not one day only, they are like showing it continuously on a specific amount of days. So they're just taking care of all of these particular
things that they do every day, which is entirely normal for their day-to-day life, and it being a very small sort of a village and very limited amount of people, it is just a monotonous life for everybody. Then when the monotony breaks is when the bull gets loose, like when that breaks off, and everything happens. So that I think the major reason of showcasing that is how just one incident can break the entire monotonous cycle of an entire village altogether. And not just like that butcher or the family that the bull has been with. It just is I would say, an overall factor that would just shake up the entire village, like the music that is there in the beginning. Because if you properly listen to it, like everything is just humping, thumping, and humping and thumping. So that is how I would say, irregularities come in their life with just one incident going wrong. So if it's a sequence of things that are happening, one thing just gets out of the sequence. So basically it's like a domino effect. Everything just goes falling down entirely. So maybe that was the reason that they showcased that montage entirely. I think that really makes sense, because I think that entire sequence kind of firstly obviously set up the monotony. At the same time, जो तूने बताया ना कि that's one incident fucks everything up. It kind of shows how I think for me it was more of a commentary, not just on the village, but just on all the structures, societal structures that we are based upon, and कितना fragile है कि like one buffalo tried to escape and अपना राइट टू लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश किया, वो उतने करने में your entire system, your entire societal machineries fails and crumbles in a domino effect, as Siddharth mentioned. Entire opening sequence, the montage, is an antithesis to what the film concludes at. Because if you see carefully, the entire sequence, what it majorly focuses on is people lining up in the meat shop and the butchers, like chopping the meats to serve it to the humans. If you go to the end sequence, that how they fight over and they butcher themselves up, from butchering animals to butchering themselves up. And that's how, that is why LJP, he particularly chooses to keep that montage in the starting sequence to develop an antithesis, कि जो ultimate, it will almost be like an oxymoron, जो जहाँ से शुरू हुआ था and कहाँ पे खत्म हो रहा है. That kind of a journey. Intermediate, that bull takes us through the journey. That bull is kind of the moderator for us for the journey. It's the monolith. It's the monolith from Odyssey. तो सबका मतलब जो सिद्धार्थ भैया ने बोला, जो अर्नब भैया ने बोला, मेरा वाला ही बहुत सिमिलर है. बस फर्क क्या है कि मैंने जब देखा ना, मैंने कहा ना कैरेक्टर्स को देख रहा था मूवी के, तो मुझे लगा कि इट वाज अबाउट, क्योंकि पूरी मूवी एक्चुअली बुल के बारे में थी ही नहीं. मतलब वो बुल के पीछे या कुछ वो मतलब मैं इसको एक वॉकिंग डेड के उससे बहुत जोड़ूंगा. वॉकिंग डेड मतलब मैंने अभी 1.5 सीजन देखा है, लेकिन वॉकिंग डेड के उससे बहुत जोड़ूंगा कि जब आपका सिस्टम कोलैप्स करता है, जब आपका जो बोलते हैं ना सिविलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड जो चीजें होती हैं, क्या बोलेंगे उसको, सही बोल रहे हैं, वो जब कोलैप्स करता है, तो उसके बाद जो लाइन होती है ना एनिमल और मैन के बीच में, खत्म हो जाती है कि बेसिक इंस्टिंक्ट आदमी का क्या है, जीना. मतलब एक वो है ना कि नेचर का एक ही रूल है कि सरवाइव करो, कैसे भी करो लेकिन सरवाइव करो. जब नहीं था तो आदमी एक दूसरे को मार के खा सकता है. मतलब बेसिक पॉइंट ये है. तो जब वो स्ट्रक्चर टूटता है, तो वो बुल के उससे स्ट्रक्चर टूटा. एक तो वो था जो मतलब बाकी दोनों ने बोल ही दिया, लेकिन एक और पॉइंट था कि इससे ना जो आप स्टार्टिंग में सीन है, वो जब वो पहला सीन उसको चाटा मारता है अपनी वाइफ को, वो दोनों लड़ रहे हैं. वो लड़की फिर से चावल बना दिया ऐसे कुछ. हाँ, फिर से इडली बना दिया आज. तो इट वाज अबाउट कि उनका जो ईगो, जो उनकी डेली लाइफ का गुस्सा था, वो सब निकला कहाँ. वो जैसे ही वो सब बंद हुआ, मतलब अगर आप देखोगे, मतलब वो मैं बहुत सारी चीजें बोलनी आ गया, अगर उस वाले को अभी बोल दूंगा गलत हो जाएगा. लेकिन जब बुल के पीछे पूरा गांव क्यों पड़ता है, पूरे गांव का पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता. अगर यहाँ पे अगर आतंकवादी छूट जाएंगे तो हम पूरे लोग आतंकवादियों के पीछे नहीं भागेंगे, हम घर में रहेंगे. वो आर्मी का काम है, पुलिस का काम है, मतलब नहीं है तो कर ही रहेंगे. लेकिन वो क्यों हुआ,
वो अंदर एग्रेशन था, वो गुस्सा था, किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी। आप देखोगे ना, जैसे Someone कि had to prove एकदम a से वहां point. काफी लोगों को अपना एक पॉइंट प्रूव करना था. पॉइंट प्रूव करना था। सिस्टम वहां पे कोलैप्स नहीं हो रहा है, वहां पे सिस्टम टूट नहीं रहा है, कुछ एवरीडे हैपनिंग में कुछ वैसा कुछ नहीं हो रहा, मेजर चेंज नहीं हो रहा। मतलब दिखा रहे हैं तुम्हें कि किस तरीके से मेजर चेंज हो रहा है, इतना कुछ बुरा हो गया एक तरीके से। जो रिदम कह रहा था टेररिस्ट को अगर खुला छोड़ दे तो एक तरीके से जो बुल का उसने लिया, मेरे को वैसा नहीं लगा। मेरे को लगा जो पहले हो रहा था, जो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस जो अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद ब खुद इतने सारे क्राइम्स करते हैं जिनका उन्हें पता नहीं होता। तो बेसिकली जो आफ्टर द इफेक्ट वाली बात हम कह रहे हैं, वो बेसिकली हो रहा है। वो एक नॉर्मल सोसाइटी में भी वैसे ही तरीके से हम डील कर रहे हैं, वैसे ही तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं। हम बेसिकली एक जानवर वाली लाइफ जी रहे हैं, बस हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है उस बात पे। बस जो वो कहते हैं एक कुछ जब मेजर होता है तब हमें थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि हम एक किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो मेरे को लगा जो स्टार्टिंग वाला सीन था, वो मोनोटोनस सीन, वो बेसिकली ये था कि किस तरीके से वो लोग डेली लाइफ में इन्वॉल्व है, डेली लाइफ में वो क्राइम कर रहे हैं, डेली लाइफ में एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें जिसमें उनके ऐसे क्राइम्स इन्वॉल्व है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। वो उनका उनका ईगो घर पे दिखता है, बाहर नहीं दिखता। उनका जो कहते गुस्सा है वो एक तरीके से चार दीवारी में है, अभी वो पूरे गांव में नहीं फैला है। तो वो बेसिकली इन्वॉल्व है, बस उन्हें लग रहा है या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें लगा अरे जब जब तक बुल नहीं आया तब तक ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, एक अच्छे से सोसाइटी थी, अच्छे तरीके से रह रहे थे, इनका सारा काम अच्छे तरीके से चल रहा था। बट वो जो ब्लर किया गया है लाइन, जब तुम्हें खुद पता चल रहा है, जब तुम खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि जो आफ्टर इफेक्ट था वो मेजर इवेंट था, जो या फिर जो बिफोर इफेक्ट था वो बड़ा मेजर इवेंट था। और जब तुम खुद अपने आप में कंक्लूड कर लेते हो कि जो बाद में कुछ हुआ वो सब एक तरीके से डिस्टोपियन सोसाइटी का एक पिक्चर है, जो पहले हो रहा था वो एक यूटोपियन सोसाइटी का पिक्चर है, तब तो तुम खुद बायस्ड हो, तुम खुद उस सोसाइटी में अब ढल चुके हो, तुम उस नॉर्मेलिटी में जी रहे हो, उस आफ्टर इफेक्ट में जी रहे हो, उस मैट्रिक्स में जी रहे हो। हाँ। और इसका तुम्हें तब पता चलता है जब ऐसा कुछ हो रहा है। तुम तो पहले से इन्वॉल्व हो, तुम अब जो भी डिसाइड करने वाले हो, जो कुछ भी डिसाइड करने वाले हो, वो सब क्या कहते हैं, एक तरीके का क्या कहते हैं, जो तुम क्या कहते हैं उसको, तुम एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि हम ऐसा कर रहे थे, उसके पीछे ये कारण था, इसके पीछे ये कारण था। The cracks become visible when एक external stimulus बाहर से आएगा ना, तभी, बिकॉज ये जो एग्जिस्टिंग पीस आपने समझ के रखा है कि कि आपकी सोसाइटी में एक पीस चल रहा है, बट उसके अंदर वो पीस लाने के लिए कितना छुपाया गया है, कितना दबाया गया है, वो कब बाहर आएगा, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस तुम्हें लाया जाएगा। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ एन आइडिया, इट बी अ फॉर्म ऑफ एन एनिमल रनिंग अवे, इट कुड बी एनीथिंग दैट इज नॉट सपोज्ड टू हैपन कंट्रोल एनवायरनमेंट में। तो जब वो उसके बाहर जाएगा तभी आपकी फ्रेजिलिटी बाहर आएगी ना एक तरीके से। जो उससे पहले तुम जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है लोग, वो भी उतना ही खतरनाक है जो उसके बाद वाले एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मतलब अगर सिर्फ एक घर पे एक थप्पड़ मार रहा है एक इंसान, और या फिर कहते हैं अपने एक कुत्ते को गाली दे रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा एक नॉर्मल सा इवेंट जिसका उतना ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है हमारे आफ्टर ऑल लाइफ पे, तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जो बाद में कर रहा है। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद का जो इफेक्ट है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जो पहले हो रहा है। तो जब हमने खुद लाइंस ब्लर कर रखी है कि यहाँ तक सही है, इसके बाद जो हो रहा है वो गलत है, तो हम खुद ही बायस्ड है, हम खुद ही सोसाइटी के हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरा वही पॉइंट था कि जो पहले का बिफोर द इवेंट का जो वो पूरा प्लान था, वो ज्यादा मायने रखता है बात की। मतलब जो डायरेक्टर शो कर रहा है वो तो दिखा ही रहा है, वो तो तुम्हें खुद ब खुद सामने आईना दिखा रहा है, बट आईने से पहले का जो वो है, जब तक तुम्हें खुद एहसास नहीं हो रहा, जब तुम्हें आईना दिखा रहा है तब तो तुम खुद देख रहे हो खुद को, बट जब तक तुम्हें आईना नहीं दिखाया है, जब तक ये ब्लैंक तुम किसी चीज में अपने चेहरे को देख रहे हो और फिर भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है, तो फिर वो ज्यादा बड़ा कहते प्रॉब्लम है ना। मतलब वो हमने बात कही थी ना क्राइम एंड पनिशमेंट में, मतलब तुम कितना भी बड़ा कहते हैं सोसाइटल वो पनिशमेंट दे दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो इंसान खुद ब खुद उसको गिल्ट का एहसास नहीं होगा, तब तक उसका क्या पॉइंट है। वो आफ्टर ऑल एक जानवर की लाइफ ही जी रहा है। Yeah, so like when we're talking about humans and animals and we living together and everything, so somewhere or the other, if you just like properly, I mean, of course, everybody remembers it, that if you see the entire process of running behind the bull or catching it and all of that stuff,
there is not a single lady present in the entire process. Like all of the women of the village are just like at home, maybe just making food because their husbands and brothers and dads and fathers and everybody's working hard just to find that one fucking bull. So technically, if there's a whole term of how the male ego is so fucking tiny, it needs to be overpowered or fueled. Need to be fed. Fueled, everything. So each and every person involved in the process of catching it is hell bent on catching it. ऐसे नहीं कि नहीं अगर नहीं मिला, then the entire village is watching you doing the process. So even if you fail, you are a failure in front of the entire village, which in turn makes you a failure in your entire life. So somewhere or the other, the whole process of male ego, then how the issues of us being affected by very little things, and just to be, I would say, seen or noticed, just because I'm facing death right now. There are people who are climbing up the well just to pull it out, just to catch him up, and they're actually falling inside the well as well, besides the bull. So you are willing to sacrifice your own life just for that few seconds of valor or I don't know, heroism. But at the end, the entire process of just like how the entire end comes in, that this is an entire ongoing process of you just following something in your life for what you want validation, but you're never going to achieve it. Do you think the film is like a commentary on or trying to promote vegetarianism or something? Like, do you think it's trying to do that? It's a good subtle commentary है उसका. No, I mean, I never saw the food or the meat to be, you know, कि कहीं उसने you know central piece पकड़ा, to be very honest, कहीं उसने central piece of the story कहीं उसने पकड़ा नहीं. मतलब obviously that bull is there, वो जो हमने सारी बातें करी that is there, but उसका जो product है, you know, bull as a product, you know, the beef part, I never saw that कि हाँ उसके लिए लड़ाई है, लेकिन कहानी उसकी नहीं है, कहानी उन लोगों की है जो लड़ाई कर रहे हैं. शायद जजमेंटल नहीं था कि इट्स नॉट अबाउट जजिंग, कि देखो हिपोक्रेसी तो है मैन में, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, हिपोक्रेसी तो है, हम हर जगह पे हिपोक्राइट है, लेकिन बात ये है कि हम जजमेंटल ना हो उस बारे में, क्योंकि इट्स गोइंग, मतलब पूरी दुनिया में हो रहा है, वो तो बन चुका है यार. You think it wasn't leaning towards anything, just observing the way it was, what was happening the way it was? For me ना, like मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए फिर भी ना ऐसे मुझे ना कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार थोड़ा कम दिखा देते या कुछ भी, एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट होता है कि वी कांट लुक एट इट, ठीक है, but what I felt was that, you know, instead of, you know, going against के vegetarian बनना चाहिए आपको, I think he was normalizing it and not just, you know, beef or in general. He was you know, like when what was his name, जो गन लेकर आता है, काजू कुछ था, ठीक है, कुचापेन नाम था उसका, हाँ वही. तो you know, he says कि तुमको पता है कौन सबसे ज्यादा डिलीशियस मीट कौन सा होता है, तो human flesh. So they very clearly like I think in the movie it was very clearly shown that, you know, it is not about what तुम किसका मीट खा रहे हो या तुम क्या, बिकॉज एट वन पॉइंट, यू नो, ऑल्सो लाइक वो लड़की जो भाग गई थी, उसके पापा, उनको जब पता चला कि उनको अभी बफेलो का मीट नहीं मिलने वाला है, तो बोला चिकन पिग कुछ तो कर लेते, इससे तो नहीं से तो बेटर ही होगा, ठीक है. तो दैट वाज द थिंग फॉर मी, राइट, ही वाज नॉर्मलाइजिंग इट कि ये कल्चर है, ये कल्चर रहेगा, और तुम कैसे भी करो तुमको एक्सेप्ट तो करना ही है. ऑब्वियसली एक बफेलो मीट का दे हैव देयर, यू नो, व्हाट यू से favoritism there, but besides that, you know, they are just like they included humans as well. And at the end when we see, you know, when they are butchering each others, you know, like so they are not अभी जो लोग भाग के आ रहे हैं उनको दिख रहा है कि ये पाइल एकदम भर चुका है, तो बफेलो तो इनको नहीं मिल रहा ऑब्वियसली, पर उनको तो चाहिए, तो इंसान ही क्यों नहीं. अरे बिकॉज आई रिमेम्बर, अरे वेरी वेल पॉइंटेड आउट वंशिता, बिकॉज याद है वो जो फिल्म खत्म होने के बाद में, आई थिंक वो इज इट अ बाइबल रेफरेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई सॉ एन एंजल स्टैंडिंग इन द सन,
who cried in a loud voice to all the birds flying in midair, "Come, gather together for the great supper of God, so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty of horses, and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small." The men had to go for that, for the क्या बोलते हैं, to find the bull or whatever, buffalo or whatever. The men, especially the men who did not go, very interesting to what happened to them. Like the father जिसकी बेटी की शादी थी, like he was bullied, he was made a horn or some chicken or something, उसकी बेइज्जती हुई. Then our humanist who was there, जिसका वो medicinal plants खराब हो गए. So that was another effeminate, a slightly man, एक कहने के लिए, that's what. हाँ, मतलब like those, उनका क्या state हुआ, like no manly man was left behind. ना के पीछे बहुत सारे लोग थे who were not, you know, manly men, एक तरह से. जैसे we took few examples, but one example would be, you know, I think in a very beautiful way it was shown. वो जो church का owner है, I guess the father. Okay, I guess it was the father, and he is just like, okay, ये सब हो रहा है, मेरे को तो अभी भी खाना है, मैं फोन करके मंगा लेता हूँ. बस उनका उतना ही था, बिकॉज लाइक वो एक नया एंगल लाया. उसके पहले आई वाज लाइक कि ठीक है, जो लोग भाग रहे हैं उनको शायद मिलेगा या उनको नहीं मिलेगा, जो भी है, बट दे आर डूइंग समथिंग. और उसके अलावा जो लोग हैं वो लोग शायद इतना फिजिकली अग्रेशन नहीं दिखाना चाहते, तो दे आर ट्राइंग देयर ओन वेज. जैसे कि वो एक दादाजी थे जो डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे थे. So like that was it. Okay, but when we see that the father, he is not into all this, and he is still managing his way out. तो वहां पे आपको पता चलता है कि इनका भी जो सिस्टम है, यहाँ पे भी हायरार्की तो है ही, रहती है सब जगह. और सिमिलरली यहाँ पे भी मतलब है कि बाकी लोग भाग रहे हैं, उनको शायद ही मिले, पर मेरे को तो मिलेगा, मैं तो खाऊंगा. और वो उधर भी वो बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर फ्रेश है तो ही चाहिए, फ्रीज का है तो नहीं चाहिए. जो मोन्टाज के बाद हम लोग कर रहे थे इन द वेरी बिगिनिंग, आई सॉ दैट द कलर ऑफ द पॉलिथीन इज ओनली ब्लैक और येलो. ऐसा नहीं है कि और नहीं होता, बट आई जस्ट हैव दिस थिंग बिकॉज ऑल्टरनेटिवली वो ब्लैक येलो का एक कॉन्ट्रास्ट एडिट में दिखाया गया. तो आई वाज क्यूरियस टू नो अगर किसी ने कुछ जाना हो इसके बारे में. एंड द वेरी गुड सीन, आई मीन इट इज वन ऑफ द आई मीन होता है ना कि कहीं ना कहीं एक डिस्क्लेमर दे दिया था. आप देखते हो जब वो लोग चर्च जाते हैं, वो लोग अपने सारे जो है वो पेड़ पे टांगते हैं. एंड आई वाज लाइक शिट, हर कोई अपने हिस्से का मीट पेड़ पे टांग रहा है. और वो जो आखिरी में जो फॉर्मेशन बनता है ना, दैट्स आल्सो लाइक काइंड ऑफ अ ट्री, एंड एवरीवन इज गेटिंग देयर शेयर ऑफ मीट. और मैंने कहा मतलब दिस इज समथिंग विच मैंने जब दूसरी तीसरी बार देखा, तब आई गेट टू नो कि यार वो उसका क्या मतलब था. एंड इट वाज लाइक कि 2 सेकंड का सीन होगा वो पेड़ वाला, कि एवरीवन इज हैंगिंग देयर शेयर ऑफ मीट. तो वो एक मेरे को पूछना था कि अगर किसी को पॉलिथीन का पता हो. And a hidden guilt that people carry, that people don't want to confront, because जो एक वो सीन था उसके बाद में आई थिंक आया था, where उसको वो लेके आता है मीट से घर पे, और बोलता है कि पीछे पीछे आगे मत लेके आया कर, आगे लेके आ, पीछे की हिट के लेके आ. एंड फिर उसकी वाइफ को बोलता है कि इसे कोकोनट मिल्क से किसी से धो दो अच्छे से, और समथिंग कुछ बोलता है, उसकी वाइफ को बोलता है. तो सामने they don't want to confront their guilt in front of them. Totally hide it. They want to totally hide it with strong colors. That's strong. And it's a very communal guilt. Like it's the guilt that binds all of them together. इसलिए वो ट्री पे सब साथ में रखा हुआ है. They know मेरा पड़ा है, मेरा मैं लेके जाऊँ, कोई लेके नहीं जाएगा. हाँ, मेरा हिस्सा कोई लेके नहीं जाएगा. सबका गिल्ट है, तो शेयर बांट के हम लोग अपना गिल्ट खा रहे हैं. तो that's not going anywhere. I mean it's so ironical, you know. मतलब ऐसे तो सब्जी वाले भी रेडी लगाते हैं, और काफी they kind of sell it to, पहले जो आंखों को समझ में आती है ना चीजें, तो दूर से दिख जाता है किसने क्या लगा रखा है. सेम गोज फॉर द मीट शॉप्स. दे हैंग इट ताकि दूर से दिख जाए. एग्जैक्टली. एंड देन व्हेन दे आर गिविंग इट, दे आर काइंड ऑफ हाइडिंग इट अवे कि भाई ये तो मतलब दिस काइंड ऑफ कल्चर वी हैव डेवलप्ड अराउंड कंज्यूमिंग. जहां हो रहा है उसको होने दे सकते हैं, लेकिन जब अपने घर में ले रहा है, मतलब वो
बात यही वो है कि नुमाइश हम नुमाइश सब लगी है, लेकिन नुमाइश का कोई वो नहीं है। बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स यार, आई मीन दे आर सो, मैंने जैसे जैसे पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, वो जो लाइन ब्लर कर दी कि जब दैट पर्सन जिसके यहाँ डॉटर की शादी होती है, वो पूरे होशो हवास खो के डिस्कस करता है कि ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एंड द मोमेंट ही स्टेप डाउन एंड ही सीइंग एवरीवन रनिंग अवे एंड देयर इज अ ओल्ड गाय, वो पूछता भाई क्या हुआ, एंड ही सेड एक बफेलो भाग गया। तो वो कहता है किसका, एंड देन ही सेज कि गॉड ऑफ डेथ, मतलब कल्लंस बेसिकली। एंड आई वाज लाइक दिस इज सो सो, मतलब एकदम, मतलब जैसे डार्ट रेड पे लगाना जाके, एकदम वैसा लगा मेरे को। मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मेरे को बहुत ऐसे लगी कि यार बस बोल के चली गई, यू नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्चुअली बीइंग देयर एंड प्लांटिंग इट कि भाई ऑडियंस को पता चले। मतलब बूढ़ा आदमी बोल गया कि भाई वो गॉड ऑफ, मतलब जो बफेलो है वो तो यमराज का है, मतलब एक तरीके से कल्लंस बेसिकली। और अगर पैरल स्टोरी गोइंग ऑन, आई मीन दैट बुचर्स फादर, he also died in the same manner, you know, so that parallel story going on, I mean it's a warning for you। मतलब कल को हम लोग कोई चीज करने जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि आखिरी में खजाना मिलेगा और खजाना खुलते वहां सांप बैठेगा और आपको मार देगा, एंड वी आर कीप हियरिंग इट। हमें सुनने में आ रहा है दैट बुचर का फादर यही करते हुए मरा था। हम लोग कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं उस पे, एंड एवरीवन नोज इट, सबके कॉन्शियस में है भाई, वो सब जानते हैं और सबको ऐसे खुला खुला सुना रहे हैं कि मतलब उसका जो फादर था ना, ये वार्की का फादर था, वो ऐसे मर गया था और सबने अपना अपना मीट लेकर, और वो 2 दिन तक पड़ा रहा था वेल में। Everyone knows it, the conclusion, I mean this is so nice and so horrifying that we as humans know the conclusion, I mean अपनी अपनी लाइफ्स के, या फिर वैसे, एंड स्टिल वी वांट टू गो देयर, स्टिल वी वांट टू हैव दैट, जबकि हमें पता है कि एंड क्या है। ये कुछ कुछ चीजें थी, बहुत सटल थी, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से उसको डायरेक्ट किया गया, रादर यू नो पुटिंग एक्स्ट्रा म्यूजिक एंड एक्स्ट्रा एफर्ट इन डेकोरेटिंग इट। I like the way how he kept it really simple। मतलब वो जो रिपीटेटिव आ रहा था ना कि मतलब वो पास्ट का बार बार बोल रहे थे कि वो पिछले में भी ऐसा हुआ था, फिर मतलब वो जो फायर के अराउंड वो जो बूढ़े अंकल होते हैं वो भी बताते हैं कि मतलब ये जगह हमारी नहीं है, मतलब कुछ भी कर लो है तो उनकी ये वो, तो मतलब कंटिन्यूअस पास्ट रेफरेंस आते हैं। पर मतलब वो जो कोट जो मैंने लिखा वही कि मतलब बार बार वही चीजें होती रहेगी, पर बार बार लोग वही बोलेंगे कि तुमने कुछ सीखा नहीं, पर वही रिपीट करेंगे बार बार। और मतलब वो भी होता है ना कि वो जो वेल वाला सीन है उसमें एक मर जाता है, फिर वो एंटनी होता है वो वापस आता है, फिर भी मतलब वो बोलता है पता है कि ये उसका मतलब वो रहने दो, मरे हुए का घर है, फिर वापस वही करने जाता है। तो मतलब वही पूरा जो that again cycle goes on विशियस साइकिल from that point, cycle goes on back to square one। That's correct। मुझे लगा था उस पॉइंट पे कि शायद अभी थोड़ा शायद ह्यूमैनिटी संभल जाग जाएंगे, जाएगी, पर राइट। ठीक है, पर अभी हाँ वही कहानी फिर एक बार। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमेशा कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है ना, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अगर हम लोग जात पात में मानते हैं, अगर ऐसा है कि हाँ ये सबसे ऊंची जात है, सबसे छोटी जात, तो अगर सबसे नीच जात कोई होगी ना तो वो है आदमी जात। वो कभी सुधर नहीं सकती। आदरणीय ने बोला ना कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स था, तो मेरे दिमाग में यही सीन आया था, पेड़ वाला, ठीक है। एंड लाइक यू नो, लाइक आई पॉज द मूवी देयर, मैंने वो सीन है ना 2-3 बार ही देखा। आई थिंक दैट वो पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो ये नहीं करता, जो नहीं खाता, ठीक है। वन थिंग वाज वेरी क्लियर देयर, ओके। एंड तो मेरा यही चीज था। आई थिंक येलो ब्लैक वाज डेफिनेटली फॉर यू नो the guilt with it, but I think yellow was for you know, like they knew that they all need it for their happiness as well, because starting में ही हम देखते हैं ना कि वो बोलता है तू रोज रोज ये चावल बना रही हो, और उसको थप्पड़ मार देता है, ठीक है, वो आदमी अपनी वाइफ को। तो दैट इज वेरी क्लियर। एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो व्हेन एवरीबडी इज रनिंग behind the buffalo, they are all expecting a piece of meat to be happy or whatever it is। तो आई थिंक उसके लिए उन्होंने एक वो येलो का टच डाला है, बिकॉज ऑल ब्लैक हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर येलो का टच वही है। और जब वो ट्री सीक्वेंस पे भी जाओगे ना, तो देयर इज मोर ब्लैक देन येलो, बिकॉज ओनली फ्यू पीपल आर यू नो, खा रहे सब हैं आउट ऑफ आदर हैबिट बोल लो,
या आउट ऑफ देयर वांट बोल लो, बट वही है कि ओनली फ्यू पीपल विल एक्सेप्टिंग इट, एक्सेप्टिंग दैट दिस इज ब्रिंगिंग देम हैप्पीनेस। जैसे कि वो That's जैसे वो nice. एक जैसे वो एक अंकल थे जिनकी बेटी की शादी थी और वो बहुत ही खुश थे, तो ही वाज वन ऑफ देम। तो वो एक वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स में कॉन्सेप्ट था कि किंग्सलेयर सिर्फ जेमी लेनेस्टर को बोला था कि उसने मार दिया था, कि चाह सब रहे थे कि वो मर जाए, लेकिन मार उसने दिया, इसलिए उसे क्या बोलते हैं किंग्सलेयर के नाम से बदनाम किया गया। सेम हेडिस के साथ हुआ था। तो वो बुचर का भी एक वो था कि सिर्फ पहले बुचर वो काम जब मोनोटोन जो पहले पूरा मोन्टाज था उसमें सब लोग खा रहे थे, सब कर रहे थे और बुचर मार रहा था, ठीक है। तो सारा अगर कर्म को, मतलब कर्मा मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर वो कर्मा वाली बात है कि सारा दोष वो अपने ऊपर लेता, मतलब इन द सेंस कि वो दोष को ना एक उस तरीके उस सिंबल से समझाना कि ही मतलब वो आगे आके वो काम कर रहा है जिसका भोग सब लोग रहे हैं, मतलब वो फल वो काट रहा है जो सब खा रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं उसके, लेकिन काम वो कर रहा है, क्योंकि किसी को मारना इज नॉट अ सिंपल थिंग, किसी को काटना इज नॉट अ सिंपल थिंग। मतलब मेरे लिए, मैं तो नहीं खाता, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं किसी को काट दूं, और वो काम, इतना मुश्किल काम वो आगे आगे कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको ही हमेशा नीचे उससे देखा जाता है। कि अगर आप वो भी देखोगे, जब जो लोग एक्चुअल जब मरने के बाद जो लोग क्या बोलते हैं उसको, क्रीमेट वो पूरा हाँ क्रीमेट करते हैं, उनको ही हमेशा नीचे उससे देखा जाता है, मतलब उनको एक उस नीचे रखा जाता है, जबकि वो काम कर रहे हैं। सेम इज विद दलित्स एंड ऑल। तो उनको आप फोर फ्रंट पे रख के फिर आप उनके पीछे छुप रहे हो। हाँ, अरे मतलब वो जो ट्री के सीन की बात हो रही थी ना, तो मतलब उसमें मैंने मतलब उस तरह से समझा था कि मतलब जनरली मोस्ट ऑफ पीपल जिस तरह से रिलीजन फॉलो करते हैं ना, कि मतलब ऑलमोस्ट 2 सेकंड के दिखावे के लिए, कि मतलब जो करते आए वही करेंगे, सिर्फ मतलब ऐसे जो वो मंदिर के बाहर चप्पल नहीं निकालते, जैसे कि मतलब ऐसे सिंबॉलिकली अपना वो सब निकाल देते ताकि ऐसे सो आप कॉल्ड धोलिए प्योर बाहर होके घुसने के अंदर पहले, जाए। हाँ। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब ऐसे ही मतलब वो लटका दिया वहां पे पेड़ पे, फिर ऐसे 2 मिनट मतलब ऐसे फेक टाइप्स ऐसे प्रे करके फिर वापस सब अपना अपना लेके चले गए। तो मतलब मुझे वो इस तरह से दिखा। और मतलब वो जब वो वेल वाला सीन था उसमें मतलब दोनों साइड से रस्सी खींच रहे थे, तो उसमें मतलब एक ओल्ड मैन था, उसके 2 क्लोजअप आए थे बीच में, कि मतलब बफेलो का साउंड था बैकग्राउंड में, पर वो ओल्ड मैन का फोटो 2 बार ऐसे क्लोजअप आया था। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा पता नहीं, ऐसा अजीब ऐसा लगा कि पता है किसी इंसान के अंदर वो आत्मा आ जाती है इस तरह सब, मतलब पता नहीं, वाओ। मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो 2 क्लोजअप ऐसे थे कि मतलब बफेला, वरना पूरे मूवी में क्या था कि बफेलो का फेस था, उसी में उसका साउंड आ रहा था, पर इसमें इस मैन जो ये ओल्ड मैन था ना, उसका 2 बार फेस आया और उसमें बैकग्राउंड बफेलो का था। तो मतलब मुझे ये था कि अगर मतलब अगर इसमें इसके पीछे कुछ हो ऐसा, या माही, फिर मतलब उसके चेहरे पे वैसे ही लग रहा था कि मतलब वो कुछ ऐसा जानता है कि मतलब वो समझता है कि ये लोग ये मतलब गलत हो रहा है जो गलत भी हो कर रहा रहे हैं है, बेसिक। हाँ। हाँ एग्जैक्टली। Yeah. वो सीन मेरा फेवरेट सीन था, और मैं सोच रहा था बाद में बात करूंगा। तो दैट होल सीन डिस्क्राइब्स द होल फिल्म। तो जो ये कह रही है, हीर कह रही है, वो इतना टेक्निकल नहीं था। वो बस जब उस बंदे का कहते हैं फेस का क्लोजअप आ रहा था, उस समय बैकग्राउंड में उसका बस कहते हैं नॉइज सुन रहे थे हम, और कुछ नहीं था, क्योंकि वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा था। तो जो उस सीन में क्या हो रहा था, जब बफेलो को नीचे से ऊपर ले आया गया था ऊपर, तो उसमें 2 क्लोजअप्स थे। पहला क्लोजअप हम देखते हैं, क्या कहते हैं, उस इंसान का जो उस भीड़ के पीछे छुपा हुआ है, और उसकी सिर्फ एक आंख पहले दिख रही होती है और फिर 2 आंख दिख रही होती है। उस इंसान का चेहरा हम भीड़ के पीछे देखते हैं। और मैंने दोनों स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जो वहां पे बफेलो का आता है और उसके बाद डायरेक्ट इस इंसान का आता है। तो ये एक इंसान है जो इस भीड़ के पीछे छिपा हुआ है, और भीड़ बहुत आगे है और इंसान पीछे है, और उसके सिर्फ आंख का क्लोजअप है, उसके आंख का क्लोजअप है। और एक एक क्लोजअप है, क्या कहते हैं उसका, बफेलो का, जब बफेलो वहां पे खड़ा होता है 2 सेकंड के लिए, बस जो उस पे खड़ा होता है, जब उसको ऊपर लेकर के वहां पे खड़ा करते हैं उसके ऊपर, तो उसके पास 2 सेकंड के लिए, जो 2 सेकंड का ये जो इंटरेक्शन होता है दोनों की आंखों के बीच, बफेलो और कहते हैं उस इंसान के बीच, तो वो पूरा फिल्म को समराइज करा है। तो जब हम कहते हैं तभी उसकी भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से उसका यूज किया गया, सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुली तरीके से पूरा सब कुछ परफेक्टली मतलब हुआ है। तो जैसे ही कहते हैं, हम पूरी फिल्म में जब बफेलो को देखा है हमने, तो बफेलो को एक खूंखार तरीके से, खूंखार जानवर की तरह देखा है, जो कि सबसे बदला लेने के लिए जा रहा है या फिर सबको मारने के लिए जा रहा है। बट इस सीन में जब उसका 2 सेकंड का क्लोजअप आता है, तब वहां पे हम उसका एक इनोसेंस चेहरा देखते हैं,
सिर्फ उतनी देर के लिए मैं उसका अगर स्क्रीनशॉट शेयर करता तो कर सकता था, बट अब मेरे पास फोन में है। बस उस 2 सेकंड के लिए हम जब उस बफेलो को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जानवर आखिर क्यों जानवर बना है, ये आखिर क्यों इस तरीके से सबके पीछे पड़ा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द होल स्टोरी, जो ये सबके पीछे भाग रहा है, या मतलब किसी जानवर के जानवर बनने के पीछे का क्या कहानी है, किस वजह से एक सोसाइटी किसी इंसान को जानवर बनने पे मजबूर करती है। ये इस पूरे सीन में सब कुछ, सब पूरा फिल्म का स्टोरी, हर चीज यहाँ पे सोसाइटी का जो तुम देखते भी हो कि किस तरीके से जब ऑपरेशन को किस तरीके से अगर कोई कर रहा है, कोई आतंकवादी क्यों बनाए या फिर कोई कुछ कैसे बनाए, जब होल होल रीजन जो उस पे पूरे फिल्म का है वो इस सीन में है जब हम उसको देख रहे होते हैं। और पीछे एक इंसान है जो उस भीड़ के पीछे खड़ा है, और यहाँ पे इस फिल्म तक, यहाँ तक हम देख रहे थे, यहाँ तक एक एविल पिक्चर दिख रहा था हमें बुल का, कहते हैं उस बफेलो का, और उसको बाकी सारे इंसान तो एक नॉर्मल बच्चों की तरह लग रहा था कि इनको ये मारने के पीछे तुला है, ये सारे तो कितने अच्छे तरीके से रह रहे थे, ये सारे अच्छे लोग थे। बट इस जगह पे हम सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसके चेहरे को देखते हैं और तब हमें सोसाइटी का एक्चुअल में असली चेहरा दिखता है। ये वाला पॉइंट मेरे को 3 जगह लगा था। एक वो जब वेल में लेके जा रहे थे तब भी उसका पूरा वो एक शॉट था, जब वो लेके जा रहे थे उसको, तब वो पूरा शॉट था, वो उसको जब वो उसकी आंखें दिखी बहुत कम है, उसकी आंखें एक स्टार्टिंग के मोन्टाज में दिखती है हल्की सी, और एक उस वाले सीन में, तो वो तीनों जगह लगता है कि हाँ ये, तो उसके तो वो देखने में लगता है कि यार मतलब वो इनोसेंस टपकती है आंखों से, वो बोलते हैं ना, मतलब वो क्रॉलर वाली मूवी का एक वो था कि जब आप किसी आदमी की आंखें दिखा देते हो तो वो आपकी वो इनोसेंट मत लगने लगता है। तो वो सेम उसके साथ बफेलो के साथ हुआ। और एक थोड़ा सा ट्रिविया और था इसमें कि जितनी बार वो उन सीनों में ही बफेलो एक्चुअल बफेलो था, बाकी टाइम तो एस्थेटिक था, वही सीन थे जिनमें एक्चुअल बफेलो को शूट किया था, बाकी टाइम एस्थेटिक था, वो बफेलो नहीं था, वो बना हुआ था। और एक मेरे को वो सिंबॉलिक पॉइंट शायद देखा होगा सबने, मेरे को मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं जल्दी से बोल दे रहा हूँ। वो स्टार्टिंग में पूरा जो किस्सा चल रहा है, बुचर को छोड़ के बाकी सब कुछ जो चल रहा है वो वहां ऊपर चल रहा है सिटी के टाइम पे, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है जंगल में घुसते चले जाते हैं वो लोग, तो वो जानवर जंगल में जाते जा रहे हैं, वो एक पॉइंट के बाद जाके सब जंगलों में पहुंच जाते हैं, सारा लास्ट का किस्सा जंगल में ही होता है। मुझे ना, बिकॉज रिदम तूने मेंशन किया था, याद है इसके पहले वाले पॉइंट में अबाउट हाउ दिस वन पर्टिकुलर गाय इज गिवन ऑल द उसकी सब उसकी कॉन्शियंस पे आ रहा है कि मैं मार रहा हूँ बाकी लोग के ताकि उनके कर्मा पर नहीं आए। तो ये कुछ सिमिलर पॉइंट मेंशन किया था। देयर इज अ फिलोसफी कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके पहले मैंने बात की है कभी, which basically tells it's about कि मतलब you're sacrificing yourself for the greater good and वगैरह वगैरह, and this entire film is like a transition from utilitarianism to hedonism. Like it eventually in the end becomes about who gets the larger pie, or like the larger meat, or whatever you might call that. एक तरीके से it becomes about you, it becomes about your desire to have more of that and to serve your desire rather than the fact that तुम्हारा पहला इंटेंशन क्या था, ताकि ये मरे और सब सोसाइटी आपस से नॉर्मल हो जाए, तो आई विल गिव माई सेल्फ टू हेल्प दैट। वो हेल्प हट जाता है, इट बिकम्स अबाउट यू। तो पूरा आई थिंक द फिल्म इज अ फिलोसॉफिकल ट्रांजिशन फ्रॉम यूटिलिटेरियनिज्म टू हेडोनिज्म एक तरीके से, इन दैट सेंस। तो इसीलिए मेरे को बड़ा ही काफकाएस्क लगता है जैसा इसमें टर्न आता है इवेंचुअली पूरे फिल्म में, स्पेशली द लास्ट फ्यू मोमेंट्स, कि आप that the beast becomes the guy who started it all, like the guy who जिसके हाथ से छूट गया था or whatever happened, उसको खा रहे थे, उसको काट रहे हैं। and because ये दिमाग में मेरे अभी भी आया, बाद में भूल ना जाए बात करना इस बारे में। I want to talk about that one scene जब हम लोग को इस लास्ट में बफेलो की आत्मा दिखती है। Does anybody have a conspiracy theory for that? कि was that the real buffalo or was it just, what was the relevance or significance of it, and क्यों वो बूढ़ा आदमी देखता है उसको उठ के, और बूढ़ा आदमी का क्या पॉइंट है पूरा, लाइक क्या दिखा रहे हैं? I think that guy was about to die because we all know कि उसे बीमार दिखाया गया है. So I think the concluding image of a lone bull there or buffalo is approaching an old man at his that door. I think it implies that what we call him, the Lord of Death, Yamraj. Yamraj, yeah. So Yamraj is on his way to ensure that his demise is assured. So अपना टाइम आ गया types. Yeah, that's it. I think. Very interesting. Why in that scene, if you look at the lighting, it's from behind the buffalo, backlighting, and it kind of creates a deity kind of figure with the halo. It feels like the
I don't know why, but उसकी आंखों में, if I remember correctly, buffalo के it looks like it's smiling or something. Like, चलो फिर हो गया, चलते हैं अब. Yeah, it looks calm. Yeah, It looks look way, very way calm. calmer. The first time you see the buffalo standing and just looking, Yeah, like contemplating itself and asking the guy to contemplate probably, and just smiling and not having any vengeful thought about the humanity or of people or something. yeah, because वो जब जो ओल्ड मैन है वो भी जब उठता है, वो फाइनली वो पूरी मूवी में लेटा हुआ दिखाया है, बट एट द एंड वो एफर्ट करके, क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं है, ठीक है, वो एफर्ट करके उठता भी है, तो ही इज नॉट रेस्टलेस. वो रेस्टलेस नहीं दिखाया गया उस टाइम पे. वो रोप को होल्ड करके उठता है. उठने के बाद शायद वो बफलो को देखता है, और बफलो तो देख ही रही होती है उसको. तो ही इज रियली काम. तो आई थिंक इट symbolizes, maybe he knows that his time is here. It gives a very transcendental feel to the entire thing, like spiritual Yeah, sort yeah, of journey शुरू करने का time आ गया types. yeah. It's like कि survival भी उसी से ही है, because खा भी उसी को रहे हैं, but आखिरी में जब जाना है तो उसके ऊपर बैठ कर जाना. Yeah, because I think the whole movie makes us question the process of human civilization, you know, at the end, कि ऐसा evolution हुआ भी था, और it's just a misbelief. I really like the fact that how this film has tackled evolution, because this film is not a first person commentary in any way. I feel it's an observational piece. Or when it comes to evolution, I think there are multiple types of evolution. So ek to biological evolution, it is very noticeable how, you know, the body structure changes, how you transform from ape to man and everything. But for the human society, evolution is basically you know, differentiating and creating this barrier between human beings and animals. So it's एक तरीके का मतलब sentiment ऐसा बनाया गया है कि human beings are more civilized, they're calm, they're peaceful, while animals are, they basically live in all this, you know, bizarre kind of environment, behaving like, you know, animals always like they get the food and they'll fight over the food and everything, and we have basically kept ourselves out of that narrative. But in this film you see the exact opposite. I think the animal is the one who is calm, because even when he's in the pit, he's just like, he's not adamant on escaping. He's okay with that. I mean, he's the only calm soul in the film, I feel. And people like even in the opening montage sequence, I feel rather than showing that it is a civilized way of living and then they transform into like animals, I think they are like animals because they wake up in herds. Like that's how animals also live in the forest, and then they go and the first thing they do is get meat to feed themselves. और उसके बाद भी there is this thing, like हमारे common perception है कि वो उस environment में they live in a very brutal way, but like in the end the people who live in a brutal way are the human beings, because they have this thing of, you know, not survival of the fittest but domination of the fittest, which is the alpha male trying to become the alpha male of the herd. And ये जो कुट्टचन जो भी character and the Antony character, they are the prime example of competing over this whole thing in order to prove that I am the one who dominates the whole herd. और उसके basically they compete over the food and then they compete over the woman also. Like there's not just like attraction to the food, there's a lust factor also in this, and both of them make these people behave in a very raw way, and वो उसी के चलते जाते हैं, because even when they go, everyone who goes to chase the buffalo is hungry for meat in the end. And Kuttachan and Antony fight over the woman because they want sex from her, so it's like a competition for them in every case. Yeah, very interesting point actually, Avinash, because I remember Sapiens में लिखा था the only two natural things that exist are sex and violence, and everything else is just culture or matrix or whatever you might call in those, in that entire spectrum. Yeah. Probably. And also, you know, if you remember, because you mentioned the fact that the buffalo seemed like the only calm soul, जो वो last scene था जब वो finally they catch hold of the buffalo stopped on its own. It was just standing there. It's like it accepted its death or something. Like, okay, then I mean, let's just end this, I guess. Like even in that cave scene in the end, the buffalo is just lying down, you know, it's maybe there's still life in it, but all these
prehistoric men are just trying to eat the meat, and the buffalo is just like calm. The last scene is it exhales. The last shot is it exhales, and it's like, Yeah. ठीक है मतलब चलो, something like gas for something. And when you speak about the Sapiens book, I think even in Sapiens, when you have these different version of prehistoric men like Neanderthals and everything, it is usually assumed that they fought and destroyed each other because of the survival of the fittest theory, that only one can exist. But I think it had a lot to do with masculinity and a lot to do with who's superior than just, because they can live in harmony. There is no possible threat, but they have to prove this fact that I'm the male, I'm the alpha male of this, community or environment. So yeah, because if you really think about it, Sapiens is just a species of man, or sorry, of humans. There was Homo erectus, there was Neanderthals, and 3-4 और भी थे. But the one with the most superior conscience of एक communal वो एक करना, एक collectiveness बनाना was Sapiens and not Neanderthal or something. Like separately अगर एक Neanderthal के सामने आप एक Sapien रखो तो बचेगा नहीं Sapien वो बंदा. But like the ability to make those 100 people work together was not with Neanderthals and with Sapiens, and that's why they survived better than them. That's all that was there. Yes. Yeah. Great point. Yeah. Basically, in every character there is this, need to like have an authority. Even the father who's planning the daughter's wedding isn't interested in his daughter's marriage or her life or getting her married to some a good guy. He's basically, he wants to please the crowd. Like, if he is good at organization, he will be treated with respect in the community. Yeah, he cared about the wedding, not the marriage, basically. Not the, Think about it. Yeah. Yes, here. इवोल्यूशन का पॉइंट तुमने बोला, तो मतलब बेसिकली वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, उसमें देयर इज एन अप्रोच, मतलब कि लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का, उसमें देयर इज वन आईपी अप्रोच, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. उसमें एक यही पॉइंट है कि मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, चाहे मतलब छोटा सा बच्चा हो या एकदम बड़े बूढ़े हो, सेम तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, पर जो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है, मतलब छोटे होंगे तो मतलब उस काइंड से हमारा एनवायरमेंट होगा, धीरे धीरे बड़े होंगे तो एक्सपोजर आता जाएगा. तो मतलब द थिंग इज, यहाँ एक चीज है, यहाँ सब प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से आ रही है चीजें, ये अपने मतलब ये अपने हाथ में हम लोग फिर भी रख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ से मतलब हम लोग कितना भी बाहर का कॉम्प्लेक्स करके हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ले कि मतलब नहीं, अभी मेरे को कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आ रही है तो मेरा इवोल्यूशन हो रहा है, पर यहाँ सब कुछ सेम ही हो रहा है. जो चीज तुम यहाँ बदल रहे हो, दैट्स नॉट एक्चुअली इवोल्यूशनरी पार्ट, वो एनवायरमेंट है. यहाँ इवोल्यूशन का मतलब, तो बेसिकली जो तुमने बोला ना कि इवोल्यूशन हो भी रहा है, तो मतलब वही कि यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ बाहर हम लोग चेंजेस ला रहे हैं और खुद ही को बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, पर वो सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं. द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोसेस. That's very interesting. Thank you so much for that perspective. जब इंसान मरने वाले टाइम पे आ जाता है, जब इंसान की बुद्धि एक तरीके से भ्रष्ट हो जाती है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि असलियत में क्या हो रहा है, और तब वो अपने कहते हैं पुराने कर्मों को याद करने लगता है जो उसको उस जगह पे पहुंचाया है, जो उस डेथ बेड पे उसको पहुंचाया है. तब उसको पता चलने लगता है. वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था जो आफ्टर थॉट ऑफ कहते हैं, जो भी ये चल रहा था, ये पागलपन जो चल रहा था इस जंगल में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था. इस ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरीके से एंड होने वाली है, और जब वो एंड होगी तो वहां पे उसको वो बफेलो मिलेगा और वो उससे पूछेगा तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे, तुम्हारे पास इतने सारे काम थे, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे, तुम पागल थे क्या. और एक तरीके से वो वहां पे उसको आंसर देना पड़ेगा, और तब जाके पता चलेगा कि ये कितने पागल लोग थे जिनको मतलब देख एक सीन आता है जब वो एंटोनी और उसका फाइट होता है और उसको कहते हैं वो मार करके चला जाता है, और बहुत सटल तरीके से उसने पूरे फिल्म का थीम को वहां पे एस्टेब्लिश करा है कि जब लोग आते हैं और उनको पता चलता है कि सब कहते हैं अरे इसे तो बफेलो ने मारा है, और एक बंदा कहता है ये तो बफेलो का वाउंड नहीं लग रहा है, इस तरीके से तो बफेलो हमला नहीं करता है. तो जो एक तरीके से वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जिसका तुम शिकार कर रहे हो, जो जिसको तुम दुश्मन समझ रहे हो, वो एक तरीके से दुश्मन नहीं है. दुश्मन तो तुम खुद ही एक दूसरे के हो. मतलब अगर तुम सारे अपने के कल्चरल डिफरेंसेज ये सब खत्म कर दोगे तो फिर इस बफेलो का तो कोई काम ही नहीं है. जो अविनाश ने कहा कि वो एक तरीके से काम तरीके से बिहेव कर रहा था, ये सारे लोग पागल थे.
और ये सारे लोग जो पागल थे एक तरीके से हर्ड मेंटेलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, किस तरीके से ये लोग एक कॉमन गोल के लिए जुड़े हुए थे। किसी के पास डिफरेंट ओपिनियन नहीं था, किसी के पास कोई भी बंदा एक तरीके से अलग नहीं सोच रहा था, सब एक ही नजर में सोच रहे थे, एक ही तरीके में सोच रहे थे। जो 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 फिल्म के थीम्स है ना उसको काफी तरीके से वेल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अगर 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 तुम देखोगे तो हर बंदा एक तरीके से, मतलब सोसाइटी और इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इवॉल्व कैसे होती है, सोसाइटी तभी इवॉल्व हो सकती है जब हर बंदे के पास अलग अलग ओपिनियंस हो एक चीज के बारे में, हर चीज के बारे में अलग अलग फैक्ट हो, हर बंदा क्रिटिक करे, एक दूसरे को गाली दे कि अरे तू जो कह रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, तू कह क्यों रहा है। और जब तक वो नहीं रहेगा, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो, तुम जाना ही नहीं चाहते, तुम एक दूसरे की तारीफ करके आगे बढ़ रहे हो, तो तुम सोसाइटी इवॉल्व नहीं होने वाली। सब एक कॉमन गोल की तरह हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो कर रहे थे, उनके पास सिर्फ एक ही था थॉट, उनके पास ना डिफरेंट ओपिनियंस था ना क्रिटिक था, तो वो कैसे इवॉल्व होगी। उनका तो सिर्फ एक ही गोल था ना कि इस तरीके से जो जो जानवर है, जानवर तो इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसको शांति से रहना चाहिए, जब हम उसका गला काटे तो गला कटवा लेना चाहिए, उसको आवाज नहीं करना चाहिए, उसको रोना भी नहीं चाहिए। मतलब तुम कितना भी मारो उसको और तुम कहते हो कि जानवर आवाज भी ना करे, तो तुम्हें आवाज भी करने की इजाजत नहीं है, तुम उस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम नॉर्मल जानवर की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम नॉर्मल जानवर की तरह खुले में पैदल चल रहे हो। हमने तो तुम्हें कैद करने के लिए पाला है, जो तुम्हारा काम है इस धरती पे, हमने तो तुम्हें मारने के लिए, काटने के लिए, इस वजह से तुम्हें पाला है। तुम आवाज उठाओगे, तुम कहते हैं तुम हमारे खिलाफ बोलोगे, तुम हमारे साथ हमारे तरीके से चलोगे, तुम हमारे तरीके से खुली आजादी में चलोगे, और उस तरीके को फिर सोसाइटी को दिखा रहा है किस तरीके से सब एक कॉमन रिवेंज के लिए, मतलब कि इनको जो हम बात कर रहे थे ना कि मेल गेज का, या फिर कहते हैं किस तरीके से मेल ऑपरेशन का, तो अब इनको लगने लगा था कि हम हमारी तरह चलने वाला एक और इंसान आ गया है, एक जानवर जो खुले में चल रहा है, खुले में दौड़ रहा है, खुले में खाना खा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको वो कैद करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो मतलब वही पॉइंट है ना जो हमने अभी हाउस ऑफ सीक्रेट्स वाला भी बात करा, कि जब तक हम बात नहीं करेंगे इन चीजों के बारे में, जब तक जो कहते हैं, अविनाश ने बहुत अच्छा पॉइंट करा कि इन्होंने, हम लोगों ने डिजाइन कर दिया है कि इंसान इस तरीके से बिहेव करेंगे, खाना खाएंगे, टाइम पे पढ़ेंगे, सोएंगे, इस तरीके से ये ह्यूमन बिहेवियर है। या फिर जो एक कॉमन तरीके का कहते हैं जो वर्किंग है हमारा, हमने डिजाइन कर रखा है कि कहते हैं पागल का मतलब पागल होता है, पागल का कोई वर्ड नहीं है, वो वर्ड हमने डिजाइन करा, हमने उस एक भाव को एक तरीके एक वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करा। अब उसके पीछे लोग लड़ रहे हैं, जश्न रेखता या जो भी है, तो मतलब हमने सिर्फ वर्ड्स डिजाइन करे, हमने कुछ नहीं दिया, हमने कहीं से, हम अगर मैं कल को संकल्प का मतलब रख लूं एक पागल इंसान, तो वो पागल इंसान में तब्दील नहीं रहा, हमने वर्ड्स को डेफिनेशंस दिया, हमने समाज बनाया, हमने लोगों को बनाया, और तो अब तुम उसको डिजाइन कर रहे हो कि तुम एक तरीके से संकल्प विशाल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, विशाल रिदम की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये पागल थिंकिंग है। दिस इज ये यही फिल्म बता रही है कि मतलब एक तुमने एक कॉमन गोल बना दिया, तुमने कॉमन डेरिवेशंस बना दिए, कॉमन डिफाइन कर दिया है गोल, सबको काम बता दिए हैं, और अब जब सोसाइटी उससे बाहर आना चाह रही है तो वो एक तरीके से पागलपन है, और वो एक तरीके से इवोल्यूशन को चैलेंज कर रही है। इस तरीके से तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, इस तरीके से तो इवॉल्व नहीं हो सकते। और जहां पे, जिस भी जगह पे, जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी समाज में ऐसी बातें होगी, उन लोगों को पागल कह दिया जाएगा, उन लोगों को, वो लोग को मतलब एक तरीके से आउटकास्ट कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल सा है, मतलब ये कुछ वैसे नहीं था, बट हाँ मैं अपने थॉट्स को आई होप कि आर्टिकुलेट कर पाया। You definitely did. मेरे लिए जो बेस्ट सीन था वो ये था कि when that old man was telling a story about his father, right, and the next moment, I think after 2-3 scenes, the camera was inside the well and it was panning upwards, and we see all of them having lights, and there's a cross and there's an animal this side, and the father was also telling the same thing to the clan at his time, that I am putting this X on the hill, on the top of the hill, and no one should come here because this belongs to animals. This is no place for us. There should be that, that boundary honi chahiye, and that's what it has shown with that one scene ki bhai camera niche hai, wo log bahar hai lights lekar, they're kind of intruding that boundary, on that verge of boundary, and wahan pe likha hai X. X means जो भी रोप से उन्होंने कहा, so it symbolizes X अगर बहुत बहुत closely देखें तो. So I mean these kind of simple yet
very powerful scenes are like the best scenes, I think.